All right, students, this is the time when we are going to discuss about the second lecture of chapter is matter around us pure. In the previous lecture, we have seen the classification of matter, the physical classification of matter, as well as the chemical classification of matter. On the basis of physical classification of matter, we already have seen that matter is divided into three or sometimes five categories, five states like solid, liquid, and gas, and those are spin, condensate, and plasma. Okay, and in the chemical classification of matter, we have seen that elements can be all the matter, all the substances can be divided into two categories. That is your pure substances and impure substances. Pure substances in the language of chemistry are considered only those substances which which are made up of only one type of molecules. So pure substances were further classified into two categories: the elements and compounds. Elements were having the atoms of same elements molecules were having atoms of only one type of element, and on the other hand, when we come to the compounds, compound was having means a molecule of compound was having elements or atoms from different elements, right? So this was the general difference between the element and compound, and then we have discussed about, in short, about the mixtures. That is, impure substances. Your impure substances can be categorized into three, or in general two parts: homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. In homogeneous mixtures, you people know that a uniform distribution of the components is required, and these are also called solutions. On the other hand, heterogeneous mixtures were further divided into two categories. That is your colloidal solution and suspension. Okay. So now we are going to discuss these all things in great detail. It is suggested to class 9th students. If you have not seen the previous lecture, please watch it. Okay. Now, so let's start with the type of mixtures. Types of mixtures. Okay. Students, previous lecture में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ that mixtures are of two types: homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Let's start with the help of an activity as NCERT makes us to do. Depending upon the nature of the components of that form a mixture, we have different type of mixtures. Let me complete with the discussion, then I'll start with the activity. Just these two activities are there or anything else? Nothing. Okay. So here in these two activities, we will discuss about the mixtures. Let's see. Let's divide the class into groups A, B, C, and D. This is COVID-19 era. You can assume a class. Okay. Otherwise, I would have taught you in a classroom, or your teacher would have taught you in a classroom. Okay. So let's divide a class into group A, B, C, and D. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. What is copper sulfate, beta? CuSO4. It is actually, when it is dehydrated, it is white color copper sulfate. Otherwise, you will have blue colored copper sulfate crystals, CuSO4. और जब इसको आप पानी में डालेंगे तो इट विल फॉर्म ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. ओके, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के नोटबुक वगैरह जब फट जाते हैं तो आप जनरली फेविकोल का यूज करते हैं. ओके, एक थोड़ा सा सस्ता कंटेंट आता है, चीप क्वालिटी कंटेंट आता है, बट क्वालिटी ठीक है, मतलब नथिंग इज चीप. इन स्टडी मटेरियल है तो चीप नहीं है वो, कॉस्ट वाइज चीप है, और उसको ले ही बोलते हैं. आपने नोटिस किया होगा वो ब्लू कलर का होता है, उसमें ब्लू कलर कॉपर सल्फेट की वजह से ही होता है. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का कलर एग्जैक्ट वैसा ही है. बाकी जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लैबोरेटरी में दिखा दूंगा. ठीक है. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Okay? दूसरे में क्या किया? ग्रुप ए ने क्या किया? 50 ml वाटर एंड कॉपर सल्फेट ले लिया. जो दूसरा है ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट. उन्होंने 2 स्पैचुला डाल दिया उसी 50 ml के बीकर में. Group C and D take different amounts of copper sulfate of potassium permanganate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture. Report the observation on the uniform
meaty in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous mixtures or solutions. Okay? मतलब सिंपल मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से समझा रहा हूँ. आप चीनी ले लीजिए और पानी में घोल लीजिए घर जा करके, ठीक है, और फिर शरबत तैयार हो जाएगा. आप ऊपर से पियो तो भी मीठा, और जब लास्ट सिप आप लोगे तो भी उतना ही मीठा. इसका मतलब जितना वाटर टू शुगर रेशियो ऊपर था उतना ही वाटर टू शुगर रेशियो नीचे है. ओके, आप इस रूम के अंदर बैठ, इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है. होमोजेनस का मतलब होता है कंप्लीट मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर में जो कंपोनेंट है ए और बी या आपका जो भी मिक्सचर है उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. आप इस रूम को एक कंप्लीट चैम्बर, क्लोज चैम्बर मान लीजिए, फिर आप रूम के इस कॉर्नर में बैठ के सांस लें या उस कॉर्नर में या उस कॉर्नर में या फिर किसी भी कॉर्नर पे या सेंटर पे, राइट, आपको सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा होगा. हाँ, आप कहीं से सैंपल उठा लें आपको सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिल जाएगा, राइट. जितना ऑक्सीजन यहाँ पर होगा उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पर होगा. क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके. सो जब आपको कंपोनेंट्स के किसी भी मिक्सचर में अगर कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, आप उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं. ओके, और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मान लीजिए आपने चॉक पाउडर पानी में डाला है, आपने बालू वाला पानी लिया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे ज्यादा बालू है और ऊपर कम है. मीन्स सैंड पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड इन द सर्फेस. ओके, एंड इन द अपर लेयर्स सैंड पार्टिकल्स आर लेसर. मीन्स आप ऊपर का वाटर लेंगे तो उसमें वाटर ज्यादा है और सैंड पार्टिकल कम है. आप नीचे से सैंपल उठाएंगे मिक्सचर का तो वहां पर सैंड पार्टिकल्स ज्यादा है और वाटर कम है. कंपोनेंट्स डिफर कर रहे हैं थ्रू आउट द मिक्सचर. पूरे के पूरे मिक्सचर में कंपोनेंट ए एंड बी का कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो वे से इट इज हेटेरोजेनस. ओके, yeah, so go through these activities, these are very easy, and I think you people can do it yourself. I'm done with your homogeneous and heterogeneous mixtures. Other examples of homogeneous, hundreds of examples of homogeneous are possible. In the very similar way, hundreds of examples of heterogeneous mixtures are also possible. Okay. What is then activity 2? फिर से आपने क्लास को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, and few crystals of copper sulfate to A, one spatula of full copper sulfate to B, chalk powder to or wheat flour to group C, and milk or ink to group D. Okay, और इस बार each group should add the given sample in water and start properly using the glass rod. मैं ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है. चलिए ये एक्टिविटी करते हैं. ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C and group D. Alright. What is group A? Few crystals of copper sulfate. इसमें हमने थोड़े crystals of copper sulfate ऐड करवा दिए. Copper sulfate बोले तो CuSO4. Alright. And one spatula full of copper sulfate to group B. यहाँ पर कुछ crystals डाले, थोड़े से crystals, और यहाँ पर पूरा एक स्पून डाल दिया है. One spatula of same thing. What? Copper sulfate. Alright. चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, इसमें हम चॉक पाउडर ले लेते हैं. सीपी, व्हाट इज सीपी? चॉक पाउडर. ओके, ग्रुप सी को. और ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, ग्रुप बी के पानी में हमने थोड़ा सा मिल्क या इंक डाल दिया है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इंक आसानी से अवेलेबल है तो हमने इंक डाल दिया. ठीक है, फाइन. नाउ व्हाट विल हैपन? अभी कुछ नहीं हुआ, अब कुछ करना है. क्या करना है? ईच ग्रुप शुड ऐड, आपने इन सबको मिला दिया और स्टायरिंग कर दी प्रॉपरली. कुछ घुल गया कुछ नहीं घुला, बट जैसे आपने चॉक पाउडर लिया और आपने प्रॉपर स्टायरिंग कर दिया तो नीचे के चॉक पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाएंगे. ओके, आ रही बात समझिए. फिर समय के साथ आप उसको रख दें तो धीरे धीरे चॉक नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, बट इतने समय के लिए तो पूरा मिक्स हो गया, ऑलमोस्ट मिक्स हो गया. अभी भी हेट्रोजेनस है, नीचे ज़्यादा चॉक है ऊपर कम है, मगर वो मिक्स हो गया. ओके, सो
अभी आपको क्या करना है, एक बीम ऑफ लाइट, एक अच्छा सा टॉर्च लेकर के पास कराना है। जब आप ए से बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो आपको लाइट यहाँ पर दिखेगा और इधर दिखेगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास हो जाएगा, बट आप लाइट का पाथ नहीं देख पाओगे कि सॉल्यूशन के अंदर लाइट किधर किधर ट्रेवल किया है। ऑलराइट, द पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी डिटेक्टेबल, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। बी में भी ऐसा ही होगा क्योंकि वो भी कॉपर सल्फेट है, वो ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओके, सी में क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे आपने कभी एक अंधेरे कमरे में किसी झरोखे से, किसी छोटे से ओपनिंग से लाइट इंटर कर रहा होता है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वहां पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स शाइन कर रहे होते हैं और आपको उस लाइट का रास्ता दिख रहा होता है, राइट? वैसा ही आपको दिखेगा चॉक पाउडर के केस में। ऑलराइट, you will be able to see the path of light, and the same is the case with your milk solution or ink solution, right? Why? Because milk या ink solution आपका कोलाइडल solution है, जो चॉक पाउडर है वो आपका सस्पेंशन है, और जो ऊपर दो हैं वो आपके ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन, when we pass a beam of light, we will not be able to see the path of light inside the solution. In case of collide, we will be able to see. In case of suspension, we will be able to see. Understood? Okay. Leave the mixtures undisturbed for few minutes and filtration. Mixture stable. Do the particles begin settle down. अच्छा, दूसरा क्या चीज़ करना है आपको? अब मिक्स लाइट वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, फिर चारों मिक्सचर्स को रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। व्हाट विल हैपन? जो आपका इंक है वो घुल चुका है और वो यूनिफॉर्मली स्टेबल रहेगा। जो आपका चॉक पाउडर है, जिसको मैंने सस्पेंशन बोला था, सी वाला, इसका चॉक नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जब चॉक नीचे डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब जो आपका सस्पेंशन था, सस्पेंशन ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, इसीलिए तो नीचे डिपॉजिट हो गया सस्पेंशन। और सॉरी, यस बेटा, और जो आपका डी है, इसमें इंक आपने ऐड किया हुआ था, दिस इज स्टेबल। इसका मतलब जो हमारे कोलाइड्स हैं, देखिए ये भी स्टेबल है, बी भी स्टेबल है और ए भी स्टेबल है। अभी यहीं से हमें ट्रिक आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस करने के लिए। सबसे पहले आप बीम ऑफ लाइट पास कराइए, अगर आपको पाथ दिख रहा है तो वो सस्पेंशन भी हो सकता है और ट्रू सॉल्यूशन भी सॉरी सस्पेंशन भी हो सकता है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? मगर वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन होता तो आपको पाथ ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रे नहीं दिख रहा होता, राइट? सो इस तरीके से आपने ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस कर लिया, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन मतलब इन दोनों से, सी और डी से लाइट रे पास हुआ था ना, और इनका पाथ दिख रहा था, पास तो दोनों से हो गया था, तीनों से, चारों से, बट आपको सी और डी के केस में पाथ दिख रहा था क्योंकि एक में चॉक पाउडर था और दूसरे में इंक था। अब आप इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो सी क्या है, चॉक पाउडर वाला यानी सस्पेंशन, वो अनस्टेबल है, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो आपका डी है वो स्टेबल है, नीचे डिपॉजिट नहीं होगा। आपने कभी मिल्क रखा हुआ देखा नीचे डिपॉजिट हो गया हो, उसका प्रोटीन और दूसरे डिजॉल्व सब्सटेंसेस नहीं होता। क्लियर? सो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है और वो क्वाइट स्टेबल। क्लियर? इतना बात समझ में आ रहा है? टेक्निकली आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, इनका पार्टिकल का साइज बेटा 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁻⁹ के ऑर्डर में होता है। ठीक है? और जो आपके सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनके पार्टिकल मीटर्स है, मीटर्स। ओके, जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनका साइज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁷ की रेंज के आसपास होता है, और जो आपके सस्पेंशन है, उनका 10⁻⁻⁷ से भी बड़ा होता है पार्टिकल साइज। ठीक है? आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उसमें 10⁻⁹ या उससे छोटा पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल्यूशन में -7 से -9 तक है। ऑलराइट, और यहाँ पर सस्पेंशन में -7 से बड़ा है। ऑलराइट,
-7 meter, 10 with the power -7 meters. Okay, so let me change now and let's move forward. आप लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और फ्लो सॉल्यूशन क्लियर हो गया. um, एक टेबल बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. जस्ट पे अटेंशन मेरे बेटा. Here we will discuss property. Okay, ज़्यादा बन गए हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, कितना पोर्शन कट कर देते हैं. एक्सपेरिमेंट हम कर क्या रहे हैं, एंड सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, सस्पेंशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है. It is quite difficult for me to write here, so try to understand. This is suspension and पहला एक्सपेरिमेंट आप क्या कर रहे हो, आप पास करा रहे हो. डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पार्टिकल साइज. ओके, पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिफरेंस. सो इट इज 10 विद द पावर -9 मीटर्स से भी छोटा. ओके, पार्टिकल साइज 10 विद द पावर -9 मीटर या फिर उससे छोटा, इक्वल टू और लेस दैन 10 विद द पावर -9 मीटर. सस्पेंशन के केस में पहले कोलाइडल बता देते हैं. कोलाइडल के केस में 10 विद द पावर -9 मीटर टू, दिस इज -9 टू 10 विद द पावर -7 मीटर की रेंज में है. और जो आपका सस्पेंशन है वहाँ पर पार्टिकल साइज इज ग्रेटर दैन 10 विद द पावर -7 meters. ओके. सेकेंड थिंग, स्कैटरिंग. ये जो बेटा मैं कह रहा था, लाइट का पाथ आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, सॉल्यूशन नहीं करेगा, सस्पेंशन करेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन करेगा. सेकेंड वी आर हैविंग, नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अलावा स्टेबिलिटी पे बात कर लेते हैं. स्टेबिलिटी. ओके, सो स्टेबिलिटी ट्रू सॉल्यूशन का बहुत हाई है. हाई मतलब वो स्टेबल है. कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, सस्पेंशन नॉट स्टेबल. ओके, अभी बात समझ में. सो दीज आर द की डिफरेंसेस जिनकी हेल्प से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सस्पेंशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन. एग्जाम्पल, सॉल्यूशन में आपके सारे होमोजेनस, हाँ
ये सब होमोजेनस होते हैं, सॉल्यूशन आपका होमोजेनस है, और सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रो एंड हेट्रोजेनस। क्लियर होगा? दिस इज नेचर ऑफ मिक्सचर. In this way, you can easily classify between these. Alright, so let me put it down. Okay. Now, what is solution? This is all about this means mixtures we have discussed, all the types of mixtures we have discussed, and this is the time to discuss about the heterogeneous mixtures we have gone through, and this is the time to discuss in detail about the solution, true solution. एक क्विक रीडिंग कर सकते हैं, हम लोग पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your everyday life. For example, lemonade, soda water. These all are examples of solutions. Usually, we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid, or a gas dissolved in it. But we can also have solid solutions, alloys, and gaseous solutions, that is air. In a solution, there is homogeneity, right? क्या है? Solution में homogeneity है, they are always homogeneous at the practice level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that particles in sugar or salt are evenly distributed in the solution. Yeah, and yes, beta. Alloys आप लोग जानते होंगे. For example, your bronze, right? And just the name is not striking in my mind. Many alloys are there. Means what is alloy? A homogeneous solution or homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. Right? Copper are homogeneous mixture. Alloys are homogeneous mixtures of metal and cannot be separated into their components by physical methods. But still, an alloy can be considered as a mixture. Okay. ये देखिए, एक brass है which contains almost 30% zinc and 70% copper. Okay. All the alloys are solutions. These are solution in solid state. सॉल्यूशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया एलॉय. लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल शरबत, लेमोनेड, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोग बताएंगे मुझे. यस, एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ पर नाइट्रोजन में सारी गैसेस डिजॉल्व है, आप मान सकते हैं. ठीक है. वी आर ऑल्सो हैविंग अ मिक्सचर. दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. ओके, होमोजेनस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन है. A solution has a solvent and a solute molecule as its components. अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है. अगर उससे ज़्यादा है तो एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे सॉल्यूट होंगे जितना भी एक्स्ट्रा है. ठीक है. द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कॉम्पोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. होता क्या बेटा, अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेज में प्रेजेंट है, सपोज आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट है एंड लिक्विड सॉल्यूट है, तो दोनों में से जो ज़्यादा है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे. ओके. और अगर हमारे पास अलग अलग फेज के सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम वाटर में शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन का जो फेज होगा, राइट, उसे हम बोलेंगे कि वो सॉल्वेंट है. राइट, उस फेज वाले को. फॉर एग्जांपल शरबत जब आपने बनाया वाटर प्लस शुगर, तो लिक्विड प्लस सॉलिड किया और रिजल्ट आ रहा है लिक्विड, मतलब लिक्विड यानी वाटर को आप सॉल्वेंट बोलेंगे.
ओके, बात समझ में आ रही है? अगर आपने लिक्विड में गैस डिजोल्व किया, लिक्विड वाटर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया, मगर रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा है, लिक्विड है, तो आप गैस को सॉल्यूट और वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे, राइट। और अगर दोनों का सेम फेज है तो हम ये देख लेंगे ज्यादा कौन है और कम कौन है, राइट। एग्जाम्पल्स यू कैन गो थ्रू, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, है ना। मेडिसिनल पर्पज में एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। जब आप ड्रेसिंग कराने जाते हैं तो एक ब्लैक कलर का लिक्विड जो है ड्रेसिंग उसमें कॉटन में डिप करके डॉक्टर आपके हाथ पर रखता है, हाथ पर या वुंड पर, वो आयोडीन टिंचर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इथेनॉल जनरली। Aerated drinks like soda water are gas in liquid solutions. These contain carbon dioxide gas as solute and water liquid as solvent. इतना समझ में आ रहा है? Air is a mixture of gas and gas. अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था बेटा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। 21% ऑक्सीजन एंड ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनका पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होगा या उससे छोटा होगा। नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग नहीं करते हैं और इनको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशन इज स्टेबल। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम? ओके, लेट्स मूव ऑन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बेटा कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ओके, या कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ओके। जैसे आपने पीछे देखिए, आप जो एक्टिविटी कर रहे थे आपको याद है अगर, तो हम लोगों ने ए में कुछ क्रिस्टल्स लिए थे कॉपर सल्फेट के और बी में पूरा 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था, 1 टीस्पून, राइट, 1 स्पैचुला। सो जब आप थोड़े क्रिस्टल्स ले रहे हैं तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जब आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, राइट। सो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूट कम है उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। मगर डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड तो क्वालिटेटिव कैरेक्टराइजेशन है, कितना डाइल्यूट कितना कंसनट्रेटेड, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। हम वेट परसेंटेज पता कर सकते हैं कि हाउ मच, सपोज मैंने बोल दिया 10% कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, या 0.1%, तो इसका मतलब, या 1%, सिंपल 1% कैलकुलेशन ईजी रखते हैं। तो 1% का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 99 ग्राम वाटर है और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट है। क्लियर? ये 1% बाई मास हो गया, 1% बाई मास। अगर मैं बोल दूं 1% बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब 100 ml वाटर में, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन में 99 ml वाटर है और 1 ml इथेनॉल है। क्योंकि आप सॉलिड्स का जनरली वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करोगे, कोई लिक्विड डालोगे उस समय, तब आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन करते हैं। अभी देखेंगे इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। Is the amount of salt and sugar of the barium chloride can be dissolved in the water at a given temperature the same, okay. uh, चलिए इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। In activity 2.2 we observe that group A and B obtain different shades of solutions, so we understand that in a solution the relative proportion of the solute and the solvent can be varied, okay. Depending upon the amount of solute present in a solution, it is called dilute or concentrated और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गिलास चीनी लिया, एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच शुगर डाला, 2 चम्मच, 3 चम्मच, आप एक बोरा शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते, राइट। बात समझ में आ रही है? ओके, सो जितना मैक्सिमम आप डिजॉल्व कर सकते हैं वो उसकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी, और उससे ज़्यादा आप उस टेम्परेचर पे नहीं डिजॉल्व कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? Is the amount of salt and sugar of or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature same?
ओके, क्या आप जितना सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, सपोज करिए 100 ml, तो 100 ml वाटर में आप सॉल्ट डिजोल्व करिए, 100 ml वाटर में आप शुगर डिजोल्व करिए, 100 ml वाटर में आप बेरियम क्लोराइड डिजोल्व करिए। ओके, तो अलग अलग सॉल्यूशन सॉल्यूट अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व किए जाएंगे। कोई 36 ग्राम हो जाएगा, ओके, कोई 2.4 ग्राम होगा, 24 ग्राम होगा, कोई और कम होगा या और ज़्यादा होगा। तो अलग अलग सॉल्यूट का अलग अलग अमाउंट कैन बी डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसका मतलब इन सबकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज हैं। हमारी बात समझ में, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू गेट डिजॉल्व। क्लियर? At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. अभी मैंने बताया था आपका saturated solution, अंडरलाइन कर लीजिए definition बेटा। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. Okay? In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. Clear? If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. क्या बताया मैंने? If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, मतलब जितना वो saturated हो सकता है, जितना dissolve हो सकता है, उससे कम dissolved है अभी, है ना, तो हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें और डिजोल्व किया जा सकता है। What would happen if we were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? आप मान लीजिए 100 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जांपल 50 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकता था वी वॉल्यूम ऑफ वाटर में, और हमने डिजोल्व कर दिया। अब हम 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे ला रहे हैं, तो क्या होगा, कूल कर रहे हैं, उस केस में शुगर के क्रिस्टल बनना चालू हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर स्टार्ट हो जाएगा। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly, right? So we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. Alright? पहली बात तो हमें ये समझ में आ गया कि अलग अलग सब्सटेंसेस के एक ही सॉल्यूट के सेम वॉल्यूम में सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, and the concentration of a solution is yes, the concentration of a solution is the amount of solute present at a given amount of, गिवन अमाउंट मतलब मास या फिर वॉल्यूम, दोनों ले सकते हैं, मैंने बताया था मास परसेंट भी ले सकते हैं और वॉल्यूम परसेंट भी ले सकते हैं, ऑफ अ सॉल्यूशन, डिपेंड करेगा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो रही है बात आप सभी को? वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए बेटा, अगर आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास परसेंटेज कैसे होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% में आ जाएगा। ओके, और अगर वॉल्यूम परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ऑलराइट, I request you all to go through these questions, example questions, these are very good questions. Okay, let's discuss this question right now. A solution contains 40 gram of common salt and 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. तो हमें क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट, मींस 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, आप सम कर दीजिए। ओके, सो यू विल गेट द आंसर कितना, 360 ग्राम।
Now mass percentage is equal to mass of solute upon mass of solution, यानी 40 upon 360 into 100. So answer is 11.11. Okay, understood? %. इस तरीके से easy calculation के questions आते हैं. So I hope concept is clear to all of you. What is a suspension? सस्पेंशन, अभी तो सॉल्यूशन फिर से हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया. सस्पेंशन बता देते हैं. नॉन होमोजेनस, नॉन होमोजेनस का मतलब हेट्रोजेनस. नॉन होमोजेनस systems like those obtained by group C in the activity 2.2. याद करिए ग्रुप सी एक्टिविटी 2.2 क्या कर रहे थे, चॉक पाउडर लिया था वाटर में. सो वो कैसा था, नॉन होमोजेनस था यानी हेट्रोजेनस था. इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स किया गया हो, इज कॉल्ड सस्पेंशन. ऑलराइट, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eyes. Right? अगर आप लाइट उसमें पास कराएं तो आपको पाथ ऑफ लाइट भी दिख जाएगा. ओके, प्रॉपर्टीज क्या है, सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस. First property, suspension is heterogeneous. And let's move further. The particles of a suspension can be seen by naked eye only. Okay, and the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Clear? The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. Alright? आपको पता है ना सस्पेंशन अनस्टेबल होता है. सो दीज आर द, और इसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. राइट, फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर लीजिए, सस्पेंशन के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके अलग हो जाएंगे. This is all about suspension beta. Now let's start with what? Let's start our discussion with colloidal solution. Okay, let me move forward. What is a colloidal solution? A mixture obtained by group D. याद करिए ग्रुप डी ने क्या किया था, वाटर में इंक डाला था या फिर वाटर में मिल्क डाला था. राइट, तो वो कोलाइडल सोल्यूशन था. इज कॉल्ड अ कोलाइड और अ कोलाइडल सोल्यूशन. द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रूआउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स. मैंने आपको बताया भी इसका क्वांटिटी कितना है, 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 10⁻⁹ मीटर तक वेरी करता है. ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ये काफ़ी स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन. सस्पेंशन के कंपैरिजन में ये स्टेबल है, बट फिर भी ये लगता है कि होमोजेनस है. ध्यान रखिएगा, इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअल में कैसा है, हेट्रोजेनस. आपको मिल्क देखने में लगता है होमोजेनस है, बट एक्चुअल में वो कैसा है, हेट्रोजेनस. क्लियर? Because the small size of colloidal particles you cannot see them with the naked eye. मगर अगर आप लाइट रे से पास कराते हैं तो वो स्कैटरिंग करेगा और आपको पाथ दिखेगा लाइट का. ओके, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. ठीक है, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं इसे. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. I have already given you this example, my dear. Right? आ रहा है? See the image of Tyndall effect. Properties of a colloid. A colloid is a heterogeneous mixture. Size of particle colloid is too small individually, cannot be seen with naked eyes. Colloids are big enough to scatter the beam of light and they are small enough to remain stable in the solution. Okay? They are quite stable. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation is required. That is called centrifugation. Okay? Centrifugation में क्या करते हैं, बहुत तेजी से घुमा देते हैं. ठीक है, रोटेशन करा देते हैं. You must have seen
your mother removing butter from uh, what? From curd. Have you seen? करती है मम्मी लोग आजकल तो सब मार्केट में आ जाता है पहले निकाला जाता था मम्मी से पूछना शी विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू डू दिस तो वो मथानी लेकर के क्या करती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कर रही होती हैं राइट दिस इज द सोल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग साइंस जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारा एक एक कॉन्सेप्ट हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ना चाहिए बिकॉज आपको साइंस पढ़ने का पर्पज यही है टू मेक द लाइफ इजियर और आप इजियर तभी बना पाओगे व्हेन यू आर नोइंग द फैक्ट्स बिहाइंड द साइंस राइट इतना समझ में आ गया The components of a colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. The solute-like components or the dispersed particles when a collide form the dispersed phase and the component in which dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. Okay. Colloids are यहाँ पर हम solvent और solute molecule word use करने के बजाय dispersion medium और dispersed phase use करते हैं. ठीक है. तो सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा है उसे आप बोल देंगे डिस्पर्जन मीडियम और जो कम है उसे आप बोल देंगे डिस्पर्स्ड फेज ओके कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट हम सॉलिड कोलाइड्स लिक्विड कोलाइड्स और गैसियस कोलाइड्स पढ़ते हैं ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एंड आल्सो डिस्पर्स्ड फेज अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1 ये देखिए लिक्विड और गैस का जब आपका गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है ओके गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है दोनों केस में तो आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है ओके एग्जांपल इन दोनों को हम एरोजॉल बोलते हैं फॉग क्लाउड मिस्ट स्मोक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये सब क्या है एरोजॉल है और आपको पता है बहुत सारे एरोजॉल स्प्रेज हम लोग यूज भी करते हैं ओके गैस अब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है तो उसमें हमारा गैस भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है फोम इमल्शन सॉल उनके एग्जांपल्स फोम के एग्जांपल्स सेविंग क्रीम सेविंग फोम ओके मिल्क फेस क्रीम मिल्क एंड फेस क्रीम आर द एग्जांपल्स ऑफ इमल्सन एंड सॉल में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ठीक है एक्वस सॉल्यूशन जब मैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन बोलता हूं इसका मतलब पानी में सॉल्यूशन ठीक है गैस टू सॉलिड फोम एग्जांपल है फोम रबर स्पॉन्ज प्यूमिस लिक्विड टू सॉलिड एग्जांपल्स आर जेल jelly cheese butter solid to solid examples are solid soul colored gemstone milky glass etc okay these are the examples of solid colloids huh? So I think this thing is clear to you all fine now let's move forward and let me see what is the next topic to be discussed all right सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर से सेपरेट कैसे करेंगे आई थिंक वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है ठीक है सो थैंक यू क्लास कीप लर्निंग कीप स्टडिंग एंड स्टूडेंट्स स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ fine this is the time for the students it is my request to the all students not only my students as well as to the students of other schools or any student who is observing or watching this video to please start coming to your schools okay because this is your turn and this is my turn our teacher and students turn to become the COVID warrior okay whole world is working whole world is moving a part of students okay so we will do it thank you class keep learning